welcome you all in our 16th lecture. Today we will discuss about some terms that are related to the dielectrics. First of all, we will discuss what are dielectrics. Students, dielectric or electrical insulators are those substances which do not allow electric current to pass, but they allow electric effect to pass through them. For example, here are some dielectric mediums and dielectric strength for a given medium. For example, for vacuum, dielectric strength is infinity. For air, this is 0.8. For paper, this is 14. For porcelain, this is 4. For water, this is 80. For mica, it is 160. When the dielectric is placed in an electric field, the electrons and protons of its constituent atoms reorient themselves, and in some cases molecules become similarly polarized. As a result of this polarization, the dielectric is under stress and it stores energy that becomes available when the electric field is removed. This is the basic thing about. First of all, we will discuss about polar molecule. A molecule in which the center of positive charges does not coincide with the center of negative charges is called a polar molecule. Polar molecule does not have symmetrical shapes. For example, HCl, H2O, NH3 are polar molecule. कहने का मतलब जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर होता है और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करते, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल. अब हाउ ए पोलर मॉलिक्यूल बिहेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन polar substance. In this figure we can see that every molecule having a dipole moment, but in the absence of electric field E, they are oriented randomly. So net dipole of these molecules is 0. But when we apply a external electric field on it, they align themselves along the direction of applied field. Hence, a dipole moment is developed. So, a polar molecule has permanent electric dipole moment P of its own, but in absence of external field and form a closed chain, and the net dipole moment is 0. When electric field applied, dipole experience a torque and tend to align in the direction of applied field, and substance has finite net dipole moment in the presence of electric field. कहने का मतलब जो हर एक मॉलिक्यूल होता है पोलर मॉलिक्यूल, उसका सेल्फ का एक डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन विदाउट एक्सटर्नल फील्ड उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो रैंडम होता है. सो उनका जो टोटल सम आएगा वेक्टर सम वो 0 होता है. जैसे हम एक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू टॉर्क वो एक उसी लाइन में ओरिएंट हो जाएंगे. सो उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आपको मिलता है. अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की. A molecule
in which the center of positive charges coincides with center of negative charges is called a non-polar molecule. कहने का मतलब जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है एक पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल. Non-polar molecule has symmetrical shape. For example, N2, CH4, O2, C6H6, etc. अब how they behave in external field. So effect of electric field on the non-polar molecule. In this figure, you can see that both center of positive and negative are coincide at same point. So in the absence of electric field, the total dipole moment is 0. But when we apply a external force on it, they develop a finite dipole moment. So a non-polar molecule has zero dipole moment of its own as positive charge is moved in direction of electric field applied and negative charge in opposite direction, and non-polar molecule become polar molecule and known as induced electric dipole. चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ठीक है. ओके. यू नो दैट व्हेन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड they develop net dipole moment. It is known as electric polarization or polarization of dielectric. Important thing is that the magnitude of dipole moment depends upon applied external electric field. So it is the process of inducing equal and opposite charges on the two opposite faces of the dielectric on the application of electric field. कहने का मतलब अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक है उसको आपने प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डायपोल के जो दो साइड होंगे दोनों साइडों पे अपोजिट चार्ज आएगा. इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. चलिए इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. लेट अस कंसीडर two plates. Okay, so one plate is plus sigma having charge plus sigma charge density and second plate having charge density minus sigma. So electric field between these two plates will be sigma upon epsilon naught, and we place a dielectric between these plate. So the dipole moment of dielectric experiences torque and align themselves according to this figure. अब आप यहाँ पे आप देखिए कि जो अप्लाइड फील्ड था वो था इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर, यानी ये प्लेट थी पॉजिटिव ये प्लेट क्या थी नेगेटिव. तो जो डाइइलेक्ट्रिक के डायपोल मोमेंट थे उन्होंने खुद को ऐसे अलाइन किया कि जो पॉजिटिव प्लेट थी उसकी तरफ कौन सा आया डाइइलेक्ट्रिक का नेगेटिव पार्ट आया और जो प्लेट नेगेटिव थी उसके पास डाइइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव पार्ट आया. तो पूरे डाइइलेक्ट्रिक के अंदर ये ऑटोमेटिक इंटरनली क्या होगी अलाइनमेंट हो गई. अब यहाँ देखिए चार्ज कौन सा है पॉजिटिव, ये चार्ज कौन सा है नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ऐसे ये चार्ज कौन सा है पॉजिटिव ये चार्ज कौन सा है नेगेटिव ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये आगे प्रोसेस चलती रहेगी. अब आप देखिए कि डाइइलेक्ट्रिक पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आया नेगेटिव चार्ज बचेगा ओनली और यहाँ क्या बचेगा पॉजिटिव चार्ज. तो हम कहेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक के दोनों अपोजिट फेसों पे अपोजिट इक्वल चार्ज डेवलप हो गया. जितना माइनस था उतना प्लस आ गया तो दोनों पे अपोजिट चार्ज आ गया. तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ओके. अब नाउ जब ये
एक देखिए यहाँ पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ए नेट डायपोल मोमेंट इज डेवलप्ड, इसको हम कहेंगे इंड्यूस चार्ज, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव इंड्यूस हुआ था, क्या होता है पॉजिटिव। इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगी, इसका मतलब एक डायपोल मोमेंट भी बनेगा इधर, तो उसको हम कहेंगे इंड्यूस डायपोल मोमेंट। और जो चार्ज की डेंसिटी आएगी उसको हम कहेंगे इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो फिलहाल इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस चार्ज। ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट दैट इक्वल टू EP इज इक्वल टू सिग्मा P डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे दो तरह के फील्ड हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो अप्लाइड फील्ड था, और सिग्मा P डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज था। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल बी E is equal to E outer minus EP, that is sigma upon epsilon naught minus sigma P divided by epsilon naught। दोनों में से कॉमन है कि एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा P। तो कहने का मतलब डाई इलेक्ट्रिक जब प्लेस करेंगे तो इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज लेस देन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बात क्लियर हो जाएगी आपको कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होगा वो हमेशा कम होता है कंपेयर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कम क्यों होगा कि जो इंड्यूस चार्ज आया था उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखिए ये अप्लाइड फील्ड है इस साइड में, और जो इंड्यूस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड से इस साइड, क्योंकि चार्ज कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास अप्लाइड फील्ड आया। इतना कंफर्म था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज लेस होगा कंपेयर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे E आउटर को शो किया है एक्सटर्नल फील्ड को, और E हमारे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए लेट अस कंसीडर नेक्स्ट टर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। You studied that when we place a dielectric in external field, the electric field inside dielectric will be less compared to applied electric field। अभी जो आपने लिखा था, हमने स्टडी किया था कि E नोट था अप्लाइड फील्ड, E नोट माइनस EP जिसको आपने E लिखा था वो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। So the ratio of applied field divided by the net electric field inside the dielectric gives the value of dielectric constant। तो ये लिखा है यहाँ पे, the ratio of applied electric field instant to reduced value of electric field intensity E on placing dielectric between two oppositely charged the plate is called dielectric constant K। कहने का मतलब जो रेशियो होगा कि अप्लाइड फील्ड डिवाइड बाय रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जो दोनों का रेशियो आया उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर हमारे पास एक टर्म और आती है पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या होता है कि हमने कहा कि इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ। जब इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ तो दोनों चार्ज के बीच में कुछ तो कुछ डिस्टेंस भी होगी, तो हम कहेंगे कि इंड्यूस डायपोल मोमेंट डेवलप होगा। तो उस इंड्यूस डायपोल मोमेंट की वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम में, इंड्यूस डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल, द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम of a dielectric when placed in an external electric field is called polarization density। It is denoted by capital P। फिर हमारे पास एक बात आई थी कि एक चार्ज डेंसिटी होती है, तो हमने ये कहा था कि जो इंड्यूस चार्ज हुआ था उसकी वैल्यू QP है। Q चार्ज था ड्यू टू पोलराइजेशन, इंड्यूस चार्ज हमने इसको कहा, और पर्टिकुलर जो प्लेट डाइलेक्ट्रिक था उसका एरिया कितना जूम किया आपने, A। तो जो वैल्यू होगी QP यानी इंड्यूस चार्ज डिवाइड बाय एरिया, उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं पोलराइजेशन
डेंसिटी की, वो क्या होती है अभी बताया था आपको, डायपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो आपने कहा कि जो इंड्यूस चार्ज हुआ था उसकी वैल्यू क्यूपी थी, डिस्टेंस क्या है बिटवीन द टू चार्जेस डी, तो डायपोल मोमेंट क्या हुआ क्यूपी इंटू डी, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, डी तो डिस्टेंस थी बिटवीन, कह सकते हैं थिकनेस थी डाइलेक्ट्रिक की, ए क्या था एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सो वॉल्यूम क्या होगा एरिया इनटू डिस्टेंस, डी से डी कैंसिल, तो पोलराइजेशन डेंसिटी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, चार्ज डेंसिटी के इक्वल। ओके, now the next term is electric susceptibility. What is the electric susceptibility? As you know that the polarization is depend upon resultant electric field E. So polarization is proportional to the resultant electric field E existing in the dielectric. कहने का मतलब जो डायपोल में P डेवलप होगा वो डिपेंड करता है कि उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, रिजल्टेंट फील्ड कितना है। सो P वेक्टर प्रोपोर्शनल टू द E वेक्टर। जब ये साइन रिमूव करेंगे तो एक टर्म आएगी एप्सिलॉन नॉट एक्साई। एक्साई हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। सो वी कैन डिड्यूस ए रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्साई। कैसे करेंगे देखिए, वी नो दैट E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, हमने पढ़ लिया था पहले। EP की वैल्यू क्या थी, सिग्मा P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट थी। सिग्मा P की वैल्यू अभी बताया था जैसे पिछले वाले टॉपिक में, किसके इक्वल है, P के इक्वल थी पोलराइजेशन के, तो आपने वैल्यू पुट कर दी है। जब आपने यहाँ रखा तो लिखा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो P की वैल्यू थी वो गिवन है पहले हमारे पास, एक्साई एप्सिलॉन नॉट और E, वो आपने यहाँ प्लेस की, इससे ये कैंसिल। ओके ओके, ये हो गया हमारे पास। अब इस E को आप इस साइड ले गए, या सब में किसको डिवाइड किया, E से डिवाइड कर दिया, तो E डिवाइड बाई E 1 हो गया, E नॉट डिवाइड बाई E ये आ गया, E से डिवाइड होने से ये बचा एक्साई, इसको हम कहते हैं K। तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एक्साई। ये है रिलेशन बिटवीन K एंड एक्साई। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।